شاہکوٹ میں غیرت کے نام پر افسوسناک واقعہ، 3 بچوں کی ماں کو شوہر نے قتل کر دیا۔ پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے THU اسپتال شاہکوٹ منتقل کیا۔ ملزم کو گرفتار کر کے آلہ قتل برآمد کر لیا گیا، جبکہ ابتدائی تفتیش میں غیرت کے نام پر قتل کا انکشاف ہوا۔ گجرات کے علاقے جلال پور جٹا میں گھڑ دوڑ کے دوران زخمی ہونے والا 10 سالہ بچہ 5 روز بعد دم توڑ گیا۔ واقعے نے علاقے میں افسوس کی لہر دوڑا دی۔ متوفی 5ویں جماعت کا طالب علم تھا، جبکہ اس کی والدہ گھروں میں کام کر کے گھر کا نظام چلاتی تھی۔ اکاڑہ میں ملاوٹی دودھ کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی کی خصوصی مہم جاری، 200 لیٹر دودھ تلف اور متعدد سپلائرز کو جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ فوڈ سیفٹی چمڑا منڈی میں سیمپل فیل ہونے پر ایک ملک شاپ کو اصلاح تک بند کر کے مالک کے خلاف FIR درج کرا دی گئی۔ جگب آباد میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے جکھرانی ہاؤس پہنچ کر رکن قومی اسمبلی اعجاز جکھرانی سے ان کے بیٹے کے انتقال پر تعزیت کی۔ انہوں نے کہا وہ اس دکھ کی گھڑی میں سوگوار خاندان کے برابر کے شریک ہیں۔ اس موقع پر دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات بھی موجود تھیں، جنہوں نے بھی تعزیت اور دعائے مغفرت کی۔ کاموکی میں اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر زرغونہ خالد سعید نے مریم نواز ہیلتھ کلینک کا دورہ کر کے طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔ دورے کے دوران انہوں نے مختلف شعبہ جات کا بھی معائنہ کیا اور مریضوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کو خود دیکھا۔ اس موقع پر انہوں نے ہدایت کی کہ مریضوں کو بروقت معیاری اور بلا تعطل طبی سہولیات فراہم کی جائیں تاکہ عوام کو فوری ریلیف مل سکے۔ فیصل آباد میں مارکہ حق بنیان المرصوص کی پہلی سالگرہ کے موقع پر تقریبات کا آغاز کر دیا گیا۔ ضلع انتظامیہ کی زیر اہتمام ضلع کونسل چوک سے کچہری بازار چوک تک ایک عظیم الشان ریلی نکالی گئی، جس کی قیادت کمشنر فیصل آباد مسرت جبین، ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر اور رکن قومی اسمبلی راجہ دانیال نے کی۔ ریلی میں مسلم لیگی رہنماؤں، افسران اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور شرکاء نے پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے۔ اور عارف والا میں اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام کبڈی ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا۔ کھلاڑیوں نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک دوسرے پر خوب داد پیچ آزمائے، تاہم عارف والا کی ٹیم نے 38 پوائنٹس کے ساتھ کامیابی حاصل کی۔ شائقین کی بڑی تعداد میچ دیکھنے پہنچی اور اپنی پسندیدہ ٹیموں کو خوب داد دی۔ جیتنے والی ٹیم کے حامیوں نے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈال کر خوشی کا اظہار کیا۔ اختتامی تقریب میں مہمان خصوصی نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ السلام علیکم، TV ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں بلال اسلم اور میں ہوں نصحت نور۔ علاقائی بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے خبر دیں گے آپ کو۔ شاہکوٹ میں غیرت کے نام پر افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ 3 بچوں کی ماں کو شوہر نے قتل کر دیا ہے۔ ننکانہ صاحب کی تحصیل شاہکوٹ کے علاقہ تھانہ سٹی شاہکوٹ کی حدود میں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جہاں 3 بچوں کی ماں رضیہ بی بی کو اس کے شوہر محمد رفیق نے مبینہ طور پر قتل کر دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ دیتے چلیں، شاہکوٹ میں غیرت کے نام پر افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ 3 بچوں کی ماں کو شوہر نے قتل کر دیا ہے۔ ننکانہ صاحب کی تحصیل شاہکوٹ کے علاقہ تھانہ سٹی شاہکوٹ کی حدود میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جہاں 3 بچوں کی ماں رضیہ بی بی کو اس کے شوہر محمد رفیق نے مبینہ طور پر آہنی راڈ سے تشدد کر کے قتل کر دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ دیتے چلیں، شاہکوٹ میں غیرت کے نام پر ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ اسی پر مزید بات کر لیں گے۔ ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کیا ہے ہماری ڈسٹرکٹ رپورٹر فرحت شہین نے۔ فرحت شہین، بتائیے گا، یہ واقعہ پیش آیا ہے، بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، قتل کرنے کی آخر وجہ کیا تھی؟ بالکل، یہ افسوسناک واقعہ تھانہ سٹی شاہ کوٹ کی حدود بخاری ٹاؤن کی گلی نمبر 4 میں پیش آیا، جہاں 3 بچوں کی ماں رضیہ بی بی کو مبینہ طور پر اس کے شوہر محمد رفیق نے بےایمانہ تشدد کے بعد قتل کر دیا۔ پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو آلہ قتل آہنی راڈ سمیت گرفتار کر لیا۔ ملزم نے اپنے ابتدائی بیان میں پولیس کو دیے گئے بیان میں مبینہ طور پر غیرت کے نام پر قتل کرنے کا دعویٰ کیا۔ اطلاع موصول ہونے پر DSP سرکل سانگلہ ہل محمد افتخار اور SHO تھانہ سٹی آصف اولک پولیس ٹیم کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے، جنہوں نے لاش کو تحویل میں لے کر تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال شاہکوٹ پوسٹ مارٹم کے لیے منتقل کر دیا، جبکہ مقامی پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کو گرفتار کر کے آلہ قتل بھی برآمد کر لیا گیا ہے، جبکہ واقعہ گھریلو تنازع ہے یا غیرت کے نام پر قتل کیا گیا ہے، اس سے قبل از وقت کچھ کہنا مناسب نہیں۔
दौरान तफ्तीश असल हकायक सामने लाई जाएंगे कि ये कत्ल गैरत के नाम पर है या घरेलू नचाकी की बिना पर किया गया है। जी ठीक है, फरहत शहीन हमें तफसीलात फराहम कर रही थी, आपका शुक्रिया। नाजरीन, गुजरात के इलाके जलालपुर जट्टा में घर दौड़ के दौरान जख्मी होने वाला 10 साला बच्चा 5 रोज बाद दम तोड़ गया। वाक़े ने इलाके में अफसोस की लहर दौड़ा दी। गुजरात में अफसोसनाक वाक़या उस वक्त पेश आया जब जलालपुर जट्टा में घोड़ दौड़ के दौरान 10 साला गुलाम मोहिउद्दीन दौड़ते हुए घोड़ों के पांव तले आकर शदीद जख्मी हो गया। मासूम बच्चा गुज़श्ता 5 रोज से अजीज भट्टी शहीद अस्पताल में ज़ेर इलाज था, जहाँ वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। मुतवफ़ी 5वीं जमात का तालिब इल्म था, जबकि उसकी वालिदा घरों में काम करके घर का निज़ाम चलाती हैं। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक मुनासिब हिफाजती इंतजामात न होने के बायस ये अफसोसनाक हादसा पेश आया। हालांकि इंतजामिया की जानिब से घुड़ दौड़ के बाकायदा इजाज़तनामा भी जारी किया गया था। फिरोजवाला के इलाके कोट अब्दुल मालिक पुराना टोल प्लाजा के करीब अफसोसनाक हादसा पेश आया है। तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में 7 साला बच्ची मौका पर ही जान बहक हो गई है, जबकि उसके वालिदैन शदीद जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू 1122 ने फौरी रिस्पॉन्स देते हुए जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फ्राहम करने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जान बहक होने वाली बच्ची की लाश पुलिस के हवाले कर दी गई है। रेस्क्यू के मुताबिक जान बहक बच्ची की शनाख्त दुआ के नाम से हुई है, जबकि जख्मियों में 33 साला सोबिया और 45 साला खलील शामिल हैं। दूसरी जानिब कराची के इलाके मलीर में अफसोसनाक वाकया, 3 साला बच्ची पानी की टैंकी में गिरकर जान बहक हो गई। तफसीलात के मुताबिक पेपरी सिंधी गोट के करीब एक घर में 3 साला बच्ची खेलते हुए पानी की टैंकी में गिर गई। वाक़े के नतीजे में बच्ची मौका पर ही दम तोड़ गई। लाश को ईदी एम्बुलेंस के जरिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाक़े के बाद इलाके में अफसोस और गम की फ़ज़ा कायम हो गई। नूरियाबाद के इलाके काट पलारी के करीब 17 साला नौजवान की गोली लगी लाश बरामद होने से इलाके में खौफ व हरास फैल गया। पुलिस के मुताबिक जान बहक होने वाले नौजवान की शनाख्त फजल वल्द शेर खान बुगटी के नाम से हुई है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक नौजवान को सर में गोली मारकर कत्ल किया गया है। वाक़े के बाद मकतूल के भाई रहमतुल्लाह बुगटी की मुद्दत में नूरियाबाद थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लाला मूसा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चोरी और डकैती में मुलव्विस गिरोह गिरफ्तार कर लिया। थाना सदर लाला मूसा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 रुकनी रसी गैंग को गिरफ्तार कर लिया। गैंग थाना सदर के इलाकों में माल मवेशी और दीगर अशिया की चोरी में मुलव्वस था। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी और खुफिया मालूमात की बुनियाद पर मुलजिमान को गिरफ्तार किया। मुलजिमान से 18,50,000 रुपये मालियत का माल मसरूका और नकदी बरामद हुई। बरामद शुदा सामान में भैंस, भेड़, बकरियाँ और लोडर रिक्शा और मोटरसाइकिल सामान शामिल था। फिरोजवाला में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान खतरनाक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गया। BRB नहर के करीब मुलजिमान के साथियों ने पुलिस वैन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी है, जिस पर पुलिस एहलकारों ने गाड़ी के पीछे छुपकर अपनी जानें बचाई हैं। फायरिंग के तबादले में मुलजिम जीशान उर्फ मलही अपने ही साथियों की गोली लगने से शदीद जख्मी हो गया। पुलिस ने मुकाबले का मुकदमा दर्ज कर लिया है और गिरफ्तार मुलजिम की निशानदही पर छापे जारी हैं। SHO के मुताबिक जल्द तमाम मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शेखुपुरा के इलाके शरकपुर चौक में नामालूम अफराद की फायरिंग से 60 साला शख्स जान बहक हो गया है। वाक़े ने शहरियों में खौफ व हिरास फैला दिया। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1122 की टीमें जय बकुआ पर पहुंची और लाश को पुलिस के हवाले कर दिया। जान बहक होने वाले शख्स की शनाख्त 60 साला मोहम्मद सादिक के नाम से हुई। शहरियों ने बढ़ते जराइम पर तशवीश का इजहार करते हुए पुलिस गश्त में इजाफे का मुतालबा किया, जबकि पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू करके मुलजिमान की तलाश का दावा किया है। दूसरी जानिब भट्टा के इलाके में पुलिस और मुलजिमान के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम राहसनी, डकैती और मोटरसाइकिल स्नैचिंग की मुतादिद वारदातों में मुलव्विस है। मुलजिम के कब्जा से वारदातों में इस्तेमाल होने वाला पिस्तौल और मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिया गया है। फरार साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं, जबकि जख्मी मुलजिम को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
मुजफ्फरगढ़ में मुबैना फायरिंग के वाक़े में एक नौजवान तालिब इल्म शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू टीमों ने जख्मी नौजवान को फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुजफ्फरगढ़ मुंतकिल किया, जहां इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद उसे निश्तर अस्पताल मुल्तान रेफर किया गया। इतलात के मुताबिक वाक़े में मुबैना तौर पर कयूम भुट्टा, शानी नुनारी और तला चांडिया भी शामिल थे, जबकि मुलजिमान पर पहले से संगीन नौयत के मुकदमात दर्ज होने की भी इतलात हैं। मुतासरा खानदान ने आला हुकाम से फौरी नोटिस और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। कश्मीर पुलिस की कराची में कार्रवाई, फ्रॉड के मुकदमात में मतलूब मुलजिम को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को कश्मीर के रिहायशी गुलाम रसूल कलोड़ की दरख्वास्त पर हिरासत में लिया गया है, जिसने इल्ज़ाम आयद किया है कि मुलजिम ने प्लॉट के नाम पर करोड़ों रुपए लेकर जाली दस्तावेजात फ्राहम की हैं। फरियादी के मुताबिक मुलजिम ने मुतादिद बार जाली चेक्स भी दिए हैं और धमकियां दी। कश्मीर पुलिस ने इत्तलात के हुक्म पर मुलजिम को कराची में उसके घर से गिरफ्तार किया है, जिसे अदालत में पेश करके जेल भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुतादिद मुकदमात दर्ज हैं। टंडो आदम में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक खुफिया इत्तला पर शहर के मखसूस इलाके में छापा मारा गया, जहां से मुलजिम को हिरासत में लिया गया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 2 किलो 125 ग्राम आला क्वालिटी चर्स बरामद हुई। पुलिस ने मनशियात बरामद करके मुलजिम के खिलाफ टंडो आदम सिटी थाने में मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आगे बढ़ें और आपको बताएं, आरिफ वाला में मनशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन जारी। अहम कार्रवाई में एक मुलजिम गिरफ्तार किया गया। डीपीओ पाकपतन की हिदायत पर थाना अहमद यार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम शफीक के कब्जा से 1350 ग्राम चर्स बरामद हुई है। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। दूसरी जानिब कमालिया में थाना सिटी पुलिस की कार्रवाई, मुलजिम गिरफ्तार, सैकड़ों ग्राम चर्स बरामद कर ली गई। एएसआई जावेद इकबाल ने दौरान गश्त थाना मोड़ के करीब मशकूक शख्स को रोककर तलाशी ली तो मुलजिम ज़ियाउल हक के कब्जे से 525 ग्राम चर्स बरामद हुई। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस हुकाम के मुताबिक नौजवान नस्ल को मनशियात से बचाने के लिए बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। नाज़रीन, फूलनगर में पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, 1.5 किलो चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज किया गया। फूलनगर में डीपीओ कसूर आफ्ताब अहमद और डीएसपी पत्तों की नासिर मलिक की हिदायत पर एसएचओ सराय मुगल इंजीनियर आमिर असलम ने मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने नवाही गांव में मशकूक मुलजिम को रोकने की कोशिश की, जो ना रुका। ताकुब के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। तलाशी के दौरान मुलजिम के कब्जा से 1500 ग्राम चर्स बरामद हुई है। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है, जबकि हुकाम का कहना है मंशियात के खात्मे के लिए कार्रवाइयां जारी रहेंगी। लाड़काना में नौजवान को मुबैना तौर पर ओताक पर बुलाकर तशद्दुद का निशाना बनाने का वाक़या सामने आया है। मुतासरा नौजवान को फौरी तौर पर ट्रामा सेंटर मुंतकिल किया गया, जबकि वाक़े का एनसी मुतल्लिका थाने में दर्ज कर लिया गया। जख्मी नौजवान के वालिद ने इल्ज़ाम लगाया कि मुलजिमान पहले भी धमकियां दे रहे थे और खेल से दस्तबरदार होने का दबाव डाल रहे थे। मुतासरा खानदान ने आला पुलिस हुकाम से शफाफ तहकीकात और इंसाफ का मुतालबा किया। पिंडी भटिया में चोरी की वारदात ने शहरियों में खौफ व हरास फैला दिया। पिंडी भटिया शहर में नामालूम चोर शहरी के घर से भारी मालियत का सामान ले उड़े हैं। मुतासरा शहरी 3,75,000 रुपए नकद और करीबन 1.5 तोला सोने से महरूम हो गया है। मुतासरा शहरी एक गरीब मेहनतकश बताया जाता है, जिसकी जिंदगी भर की जमा पूंजी चोरी हो गई है। शहर में बढ़ती हुई वारदातों पर शहरियों में शदीद तशवीश पाई जा रही है। अवाम ने डीपीओ हाफिजाबाद से वाक़े का फौरी नोटिस लेने और मुलजिमान की गिरफ्तारी का मुतालिबा किया है। शाहजमाल में बासर अफराद की खातून के घर घुसकर मुबैना तशद्दुद और तोड़फोड़, मुकदमा दर्ज न होने पर इंसाफ की अपील की गई है। मुतासरा खातून के मुताबिक 15 पर कॉल के बावजूद पुलिस मौका पर आकर बगैर कार्रवाई वापस चली गई। उन्होंने डीपीओ मुजफ्फरगढ़ और आरपीओ डेरा गाजी खान की खुली कचहरी में भी दरख्वास्त दी, ताहाल कोई मुअस्सिर कार्रवाई नहीं हुई। खातून ने कहा मुलजिमान मुसलसल धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। पाकपतन के नवाही इलाके में अफसोसनाक वाक़या, तैयार गंदम की फसल आग लगने से मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुल्हिका जमीन पर फसल की बाकियात जलाने के दौरान आग बेकाबू हो गई है, जिसने देखते ही देखते पूरी फसल को अपनी लपेट में ले लिया।
واقعے کے نتیجے میں متاثرہ کسان کو لاکھوں روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑا ہے، جبکہ مہینوں کی محنت چند منٹوں میں راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ متاثرہ کاشتکار شدید پریشانی اور افسردگی کی حالت میں نظر آیا۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ پاک پتن کے علاقے ملکہ ہنس میں قتل کے واقعے نے نیا رخ اختیار کر لیا۔ والدہ نے بہو اور بیٹے پر سنگین الزامات عائد کر دیے۔ والدہ کے مطابق بہو اور بیٹے کے درمیان ناجائز تعلقات تھے اور مقتول کو راستے سے ہٹانے کے لیے مبینہ طور پر سازش کی گئی۔ انہوں نے کہا اس کے بعد ملزمان خود ہی مدعی بن گئے جو سوالیہ نشان ہے۔ مقتول کے بھائی مظہر نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ اصل حقائق سامنے لانے کے لیے شفاف تحقیقات کی جائیں اور نامزد ملزمان کو گرفتار کیا جائے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں ناظرین، آپ کو بتائیں اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ نوٹس لے کر کارروائی کا آغاز کریں۔ مدعی بن چکے جو سوالیہ نشان ہے مقتول کے بھائی مظہر نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ اصل حقائق سامنے لانے کے لیے شفاف تحقیقات کی جائیں اور نامزد ملزمان کو گرفتار کیا جائے۔ اگاڑا میں اکیڈمی سے متعلق مبینہ زیادتی اور ہراسانی کے الزامات پر مقدمہ درج کیا گیا۔ شہری کی مدعیت میں درج ایف آئی آر کے مطابق مبینہ طور پر زیادتی اور ہراسانی کے الزامات سامنے آئے ہیں۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور تفتیش کا آغاز کر دیا گیا اور شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ اہل علاقہ کے مطابق اکیڈمی سے متعلق پہلے بھی شکایات سامنے آتی رہی ہیں۔ شہریوں نے واقعے کی شفاف انکوائری اور سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ پاک پتن میں پیٹرولنگ پولیس نے ہائی وے پر گمشدہ بچہ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے تلاش کر کے ورثہ کے حوالے کر دیا۔ انچارج پیٹرولنگ پوسٹ مرلے چوک نے اپنی ٹیم کے ہمراہ روزانہ کی بنیاد پر غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں۔ اسی دوران اطلاع ملی کہ نواحی علاقے کالے شاہ سے 10 سالہ بچہ گھر سے لاپتہ ہو گیا تھا۔ ٹیم نے فوری کارروائی کرتے ہوئے جدید ٹیکنالوجی اور تلاش آپریشن کے ذریعے چند گھنٹوں میں بچے کو ڈھونڈ لیا۔ اس کے بعد بچے کو بحفاظت اس کے ورثاء کے حوالے کیا گیا، جس پر اہل خانہ نے پولیس ٹیم کا شکریہ ادا کیا۔ کمالیہ میں ٹریفک نظام کی بہتری کے لیے پولیس متحرک ہو چکی۔ ٹریفک انچارج احمد کریم اپنی ٹیم کے ہمراہ شہر کی مختلف شاہراہوں پر موجود ہیں جہاں گاڑیوں کی چیکنگ جاری ہے۔ اس دوران نمبر پلیٹس، رجسٹریشن اور دیگر کاغذات کی مکمل جانچ کی جا رہی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں محمد ارشد باکسر سے۔ میں اس وقت موجود ہوں ٹوپا ٹیکسی کی تحصیل کمالیہ میں۔ تحصیل کمالیہ میں ٹریفک انچارج احمد کریم نے بڑی گاڑیوں اور چھوٹی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے۔ مزید میرے ساتھ احمد کریم موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ کن گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے، آئیے ان سے جانتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جو گاڑیاں شہر میں ہیوی ٹریفک جس کا منع ہے صبح 7 سے لے کر رات 9 بجے تک، ہم اس کو گاڑیوں میں شہر میں انٹر نہیں ہونے دیتے اور ان کو بائی پاس گزارا جاتا ہے۔ بالفرض اگر کوئی گاڑی شہر میں داخل ہواتی تو اس کے ہم خلاف کارروائی کرتے ہیں جو قانونی طور پر بنتی ہے۔ اور جو باقی پی ایس پی گاڑیاں جو ان رجسٹرڈ ہے، جو 2 اڈے بنے ہوئے ہیں، تیسرا جنرل بس سٹینڈ ہے، اس پہ جو گاڑیاں رجسٹرڈ ہیں وہ آ رہی ہیں، شہر میں انٹری ڈال رہی ہیں، جو نہیں ہیں ان کو ہم بائی پاس گزار رہے ہیں۔ اور باقی اس کے ساتھ ساتھ گرمیوں کا موسم ہے، گاڑی یوز کرنے والے کو چاہے وہ کار ہو، موٹر سائیکل ہو، کوئی ہے، ان کو یہ ہدایات جاری کریں گے کہ آپ اپنے ٹائروں کا خاص خیال رکھیں، اپنے انجن کو چیک کریں تاکہ آپ کہیں روڈ پہ جا رہے ہیں تو آپ کی گاڑی گرم نہ ہو اور آپ کی گاڑی آپ کو نقصان نہ دے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹائروں کا خاص خیال رکھیں، ٹائروں آپ صحیح ہوں گے تو آپ کا سفر محفوظ ہوگا۔ سیٹ بیلٹ کا استعمال کریں اور لائسنس اپنی جیب میں رکھیں، اور موٹر سائیکل جو سوار ہیں وہ اپنے سر پہ ہیلمٹ رکھیں تاکہ آپ کسی حادثے کا شکار نہ ہو۔ جیسا کہ آپ نے احمد کریم کی بات سنی، ان کا کہنا ہے کہ ٹریفک قوانین پر عمل درآمد نہ کرنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد ارشد باکسر، ٹی وی ٹوڈے نیوز، کمالیہ۔ جی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ننکانہ صاحب میں ممکنہ سیلابی خطرات سے نمٹنے کے لیے انتظامیہ نے پیش کی تیاریوں کا عملی مظاہرہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر ننکانہ انتظامیہ نے سیلابی خطرات سے نمٹنے کے لیے تمام پیشگی انتظامات مکمل کر لیے۔ ریسکیو 1122 کے ہیڈ کوارٹر میں شہری اور دریائی سیلاب سے نمٹنے کے لیے ڈرائی موک ایکسرسائز کا انعقاد کیا گیا، جس میں ضلعی اداروں کے درمیان مؤثر کوآرڈینیشن کا عملی مظاہرہ کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر محمد تسلیم اختر راؤ نے مشقوں کا معائنہ کیا اور کہا عوام کے جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔
उगाड़ा में मिलावटी दूध के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की खसूसी मुहिम जारी। 200 लीटर दूध तल्फ और मुतादिद सप्लायर्स को जुर्माने आयद कर दिए गए। फूड सेफ्टी टीमों ने मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी के दौरान दूध बरदार गाड़ियों और मिल्क शॉप्स की इंस्पेक्शन की। कार्रवाई के दौरान 200 लीटर मिलावटी दूध तल्फ किया गया, जबकि 5 सप्लायर्स पर भारी जुर्माने आयद किए गए। चमड़ा मंडी में सैंपल फेल होने पर एक मिल्क शॉप को इस्लाह तक बंद करके मालिक के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई। हुकाम के मुताबिक दूध में फैट और कुदरती ग़िज़ाइयत की कमी पाए जाने पर कार्रवाइयाँ अमल में लाई गईं, जबकि सूबा भर में ऐसे खसूसी ऑपरेशंस जारी रहेंगे। शेखुपुरा में पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमें मुतहर्रिक जिला भर में फूड पॉइंट्स का वसी पैमाना पर मुआयना किया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी शेखुपुरा की फूड सेफ्टी टीम्स ने जिला भर में 95 फूड पॉइंट्स का मुआयना किया है, जिसके दौरान हिफ्ज़ान सेहत के असूलों की खिलाफ वर्जी और सफाई के नाक़िस इंतजामात पर 1,97,000 रुपये से ज़ायद के जुर्माने आयद किए गए हैं। चेकिंग के दौरान 37,350 लीटर दूध की जाँच भी की गई है, ताकि मयारी दूध की फ्राहमी को यकीनी बनाया जा सके। इसके अलावा गैर मयारी और ज़ायदुल मयाद अशिया, जिनमें 1.855 किलोग्राम मिठाई और दीगर बेकरी आइटम्स भी शामिल थे, मौका पर तलब कर दी गई हैं। फूड सेफ्टी टीम्स ने मुख्तलिफ फूड पॉइंट से नमूने हासिल करके लेबॉर्ट्री भिजवा दिए हैं, जबकि मुतादिद मालिकान को इस्लाही नोटिस भी जारी किए गए हैं। दूसरी जानिब खानेवाल में मिलावटी दूध के खिलाफ कार्रवाई। 300 लीटर दूध तल्फ और मिल्क शॉप मालिक को जुर्माना आयद कर दिया गया। खानेवाल के इलाके कबीरवाला में पंजाब फूड अथॉरिटी ने मिलावटी दूध बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हेड सरदारपुर में एक मिल्क शॉप की इंस्पेक्शन की। तर्जुमान के मुताबिक टेस्ट के दौरान दूध में मिलावट साबित हुई और फैट और कुदरती ग़िज़ाइयत की कमी पाई गई। कार्रवाई के दौरान 300 लीटर गैर मियारी दूध मौका पर तल्फ किया गया, जबकि दुकान मालिक को 20,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। DG फूड अथॉरिटी ने कहा, मिलावटी दूध बच्चों की सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है और ऐसे अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। फैसलाबाद में फूड अथॉरिटी की कार्रवाई, जाली मसाला जात की बड़ी खेप पकड़ ली गई। जी हां, कार्रवाई के दौरान 100 किलो मारूफ ब्रांड के जाली मसाला जात बरामद हुए हैं। तर्जुमान के मुताबिक मसाला जात पर जाली लेबल लगे थे और लेबॉर्ट्री टेस्ट में फेल करार पाए गए हैं। गाड़ी कब्जे में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि माफिया के खिलाफ कार्रवाई जारी है। जैबकाबाद में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने जाखरानी हाउस पहुंचकर रुकन कौमी असम्बली एजाज जाखरानी से उनके बेटे के इंतकाल पर ताज़ियत की। इस मौका पर वज़ीर आला ने मरहूम के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख़वानी की और दुआ की कि अल्लाह ताला मरहूम को जवार रहमत में जगह दे और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। उन्होंने कहा वो इस दुख की घड़ी में सोगवार ख़ानदान के बराबर के शरीक हैं। इस मौका पर दीगर सियासी और समाजी शख्सियात भी मौजूद थीं, जिन्होंने भी ताज़ियत और दुआए मग़फ़िरत की। बुरेवाला के सियासी रहनुमाओं की लाहौर में साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से मुलाकात हुई। मुलाकात में साबिक MNAs चौधरी नज़ीर अहमद अराई, चौधरी फ़कीर अहमद अराई और साबिक MPA सरदार खालिद महमूद डोगर शरीक थे। इस दौरान आइंदा बल्दियाती और आम इंतखाबात पार्टी तंजीम साजी और सियासी हिकमत अमली पर तफसीली गुफ्तगू की गई है। ज़राए के मुताबिक बुरेवाला में जारी तरक्याती मनसूबों और अवामी मसाइल पर भी तबादला ख्याल हुआ है। मुलाकात में इलाकाई तरक्की के अमल को मज़ीद तेज़ करने के अज़्म का इजहार किया गया। कामुकी में असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर जरगोना खालिद सईद ने मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक का दौरा करके तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया है। दौरे के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ शोबाजात का भी मुआयना किया और मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलियात को खुद देखा। इस मौका पर उन्होंने हिदायत की कि मरीजों को बर वक्त म्यारी और बिलातातुल तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएँ ताकि आवाम को फौरी रिलीफ मिल सके। उन्होंने कहा, सेहत की म्यारी सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है और इसमें किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नाज़रीन, साहिवाल में कमिश्नर डॉक्टर आसिफ तुफैल ने जारी सीवरेज मनसूबों का तफसीली दौरा किया और काम की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत जारी की। कमिश्नर साहिवाल डॉक्टर आसिफ तुफैल ने पाइप फैक्ट्री और कंक्रीट बेचिंग प्लांट का भी मुआयना करते हुए मनसूबों के मयार का जायज़ा लिया है। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की है कि सीवरेज लाइन बिछाने के काम को तेज़ी से मुकम्मल किया जाए। आपको बताते चले कि कमिश्नर साहिवाल डॉक्टर आसिफ तुफैल ने पाइप फैक्ट्री और कंक्रीट बेचिंग प्लांट का भी मुआयना करते हुए मनसूबे के मयार का जायज़ा लिया है। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की है कि सीवरेज लाइन बिछाने के काम को तेज़ी से मुकम्मल किया जाए ताकि शहरियों को जल्द रिलीफ मिल सके। कमिश्नर ने वाज़ेह किया है कि काम के दौरान सेफ्टी इक़दामात पर
सख्ती से अमल किया जाए, साइन बोर्ड्स लाजमी लगाए जाएं, शहरियों की सहूलत के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट यकीनी बनाई जाए और खुदाई वाली जगहों पर पानी का छिड़काव भी जारी रखा जाए। बहावलपुर में कमिश्नर इरफान अली काठिया ने इम्तिहानी मराकज़ का अचानक दौरा करके इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने हिदायत की कि इम्तिहानात में मुकम्मल मेरिट, शफाफियत और नज़्म व ज़ब्त को यकीनी बनाया जाए। इम्तिहानी मराकज़ के इतराफ़ दफ़ा 144 नाफिज है और गैर मुतल्लका अफराद के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। कमिश्नर ने तलबा से गुफ्तगू करते हुए इन्हें मेहनत और दयानतदारी से इम्तिहान देने की तलकीन की। इस मौका पर सेक्रेटरी एजुकेशन बोर्ड अदील मालिक चीमा भी उनके हमरा थे। सेवन शरीफ में इंसानी हकूक़ फोरम के ज़ेर-ए-एहतमाम इजलास शहर के मसाइल पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। इजलास में महंगाई, बेरोजगारी, अमन व अमान की सूरत हाल और शहरी हकूक़ की पामाली जैसे अहम मसाइल ज़ेर बहस आए हैं। शुरका ने सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि अवामी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं जबकि इदारे खामोश हैं। अब्दुल खालिक मेमन ने कहा है कि सेवन शरीफ के अवाम को नज़रअंदाज करना कबूल नहीं किया जाएगा और अगर हालात बेहतर ना हुए तो एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी। लाड़काना में पाकिस्तान डिफेंस पैट्रियट्स का अहम इजलास मुनक्किद हुआ है। मुल्क की सलामती और कौमी यकजहती पर जोर दिया गया। लाड़काना में पाकिस्तान डिफेंस पैट्रियट्स के ज़ेर-ए-एहतमाम एक पुरवकार इजलास समबारा होटल में मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत मरकजी चेयरमैन निडर हुसैन अबड़ो ने की। इजलास में मरकजी और सूबाई क़यादत समेत मुख्तलिफ अजलास से अहदेदारान और कारकुनान ने शिरकत की। शुरका ने पाकिस्तान से मोहब्बत और कौमी इदारों के साथ खड़े होने की अज़्म का इज़हार किया। इस मौका पर मुकर्ररीन ने कहा कि तंजीम का मकसद कौमी यकजहती को फ़रोग़ देना और पाक अफ़वाज इदारों की हिमायत करना है। फैसलाबाद में मार्का हक बुनियानुल मरसूस की पहली सालगिरह के मौका पर तकरीबात का आगाज़ किया गया। ज़िला इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम ज़िला कौंसल चौक से कचहरी बाजार चौक तक एक अज़ीमुश्शान रैली निकाली गई है, जिसकी क़यादत कमिश्नर फैसलाबाद मुसर्रत जबीन, डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर और रुकन कौमी असम्बली राजा दानियाल ने की है। रैली में मुस्लिम लीगी रहनुमाओं, अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद शिरकत की है और शुरका ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। मुकर्ररीन ने कहा है कि एक साल कबल पाक फौज ने भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब देकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। उन्होंने कहा कि बुनियानुल मरसूस दुनिया की तारीख का कामयाब तरीन ऑपरेशन था जिसने पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत को उजागर किया। कश्मोर टाउन कमेटी में चेयरमैन की तब्दीली, नज़ीर अहमद मज़ारी को इख्तियारात सौंप दिए गए हैं। ये नोटिफिकेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत और MNA सरदार अली जान मिज़ारी की हिदायत पर जारी किया गया। नज़ीराबाद नज़ीर अहमद मिज़ारी ने कहा कि वो शहरी मसाइल के हल के लिए तमाम काउंसलर्स और मुलाजमीन के साथ मिलकर काम करेंगे। उन्होंने सफाई, पानी निकासी, आब और दीगर बुनियादी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने का अज़्म ज़ाहिर किया। जाफराबाद के शहर डेरा लायार में सफाई और निकासी आब की अबतर सूरत हाल शहरियों के लिए बबाले जान बन गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों खसूसन लारी अड्डा और गलियों में नालों का गंदा पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जगह जगह कचरे के ढेर और गंदे पानी के बायस न सिर्फ आमदोरफ्त मुतासर हो रही है बल्कि बीमारियां भी तेजी से फैलने लगी हैं। मुतासरा शहरियों ने वज़ीर आला बलोचिस्तान से फौरी नोटिस लेने और जिम्मेदार अमले के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा किया है। खानेवाल के करीब मोटरवे M4 शामकोट के मुकाम पर पुल की खस्ताहाली खतरे की घंटी बजा रही है। मोटरवे M4 पर वाक़या पुल के पुश्ते कमज़ोर हो चुके हैं जबकि हालिया बारिशों के बायस सड़क में गहरे गड्ढे पड़ गए हैं। ये सूरत हाल मुल्क की अहम शाहराह पर ये सफ़र करने वालों के लिए ख़तरनाक बनती जा रही है। मुसाफिरों और मुकामी अफराद का कहना है कि अगर फौरी मुरम्मत ना की गई तो मज़ीद बारिशों की सूरत में पुल को शदीद नुकसान पहुँच सकता है जिससे बड़े हादसे का खदशा है। उन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी और वफाकी हुकूमत से मुतालिबा किया है कि फौरी तौर पर मुरम्मत और बहाली का काम शुरू किया जाए ताकि कीमती जानों को महफूज बनाया जा सके। कल अहमदाबाद में गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल के सामने गंदगी और नाले की सूरत हाल ने सुथरा पंजाब मुहिम के दावों की हकीकत खोल के रखी। नाले में मुसलसल खड़ा गंदा पानी न सिर्फ तालीमी माहौल को मुतासर कर रहा है बल्कि स्कूल की इमारत को भी नुकसान पहुँचने का खतरा पैदा हो चुका। मकामी शहरियों ने कहा कि अरबों रुपए के दावों के बावजूद अमली तौर पर सफाई का निज़ाम नाकाम है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने और इस गंदगी के खात्मे का मुतालबा किया ताकि तलबा का मुस्तकबिल महफूज बनाया जा सके।
फैज़ गंज के इलाके पक्का चौंग में टाउन कमेटी की कारकर्दगी पर शहरियों ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। शहरियों का कहना है कि करोड़ों रुपए के सालाना बजट के बावजूद शहर में तरक्याती काम ना होने के बराबर है। मुख्तलिफ इलाकों में गंदगी के ढेर, निकासियाब का नाकिस निज़ाम, पीने के साफ पानी की किल्लत और स्ट्रीट लाइट्स की अदम दस्तयाबी ने ज़िंदगी मुश्किल बना दी है। अवाम ने मुतालिबा किया है एहतसाबी इदारे फौरी तौर पर टाउन कमेटी के बजट और अखराजात की शफाफ तहकीकात करें ताकि असल सूरत हाल सामने आ सके और शहरी मसाइल हल किए जा सकें। मुरीद के मेन बाजार और मुख्तलिफ तजारती इलाकों में नाजायज़ तजावुज़ात के बायस शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। फुटपाथों और सड़कों पर सामान रखने, गैर कानूनी रेहड़ियों और दुकानों के आगे कब्ज़ों ने ट्रैफिक के निज़ाम को दरहम बरहम कर दिया है, जबकि पैदल चलने वालों को भी गुजरने में दुश्वारी का सामना है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इमरान अली की इस रिपोर्ट में। मुरीद के मेन बाजार में नाजायज़ तजावुज़ात का मसला संगीन सूरत अख्तियार कर गया। दुकानों के बाहर सामान रखने, रेडी बानों के बेहंगम खड़े होने और फुटपाथों पर कब्जे के बायस अवाम को आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। शहरियों का कहना है कि बाजारों में खरीदारी के लिए आने वाले अफराद को रश, ट्रैफिक जाम और पैदल चलने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, जबकि खवातीन, बुजुर्ग, शहरी और बच्चों के लिए सूरत हाल मजीद परेशान कुन हो जाती है। अवामी हलकों ने मुतालबा किया है कि असिस्टेंट कमिश्नर मुरीद के और मुतल्लिका अदारे फौरी कार्रवाई करते हुए नाजायज़ तजावुज़ात का खात्मा यकीनी बनाएं ताकि शहरियों को रिलीफ मिल सके और बाजारों में ट्रैफिक की रवानी बेहतर हो सके। कैमरा टीम के साथ इमरान अली, टीवी टुडे न्यूज़, मुरीद के। आरिपाला में महंगाई और डीजल की बढ़ती कीमतों के बायस सफरी अखराजात में इजाफा हो चुका, जिससे मजदूर तबका सख्त मुश्किलात का शिकार है। तफसीलात जानते हैं मिर्जा गुलाम अली से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त आरिपाला के लारी अड्डा में मौजूद हूँ। हालिया डीजल की कीमतों में इजाफा के बायस जो गरीब आदमी है उसके लिए सफरी अखराजात बर्दाश्त करना नहायत मुश्किल और नामुमकिन हो चुका है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी, गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, तेल तो कोई बहुत महंगा हो गया जी, कितने आना जाना बहुत मुश्किल हो चुके हैं जी। बराए मेहरबानी इससे कोई निगरानी करो जी, बहुत मेहरबानी होगी थोड़ी आपकी जी, शुक्रिया। इन्नी गल कहना गरीब आदमी है, रोटी नहीं पूरी होती ना कि जा सकने ना आ सकने, ब्याह शादी से मरण जीवन कि आइए जाइए आपो आदि मन मर्जी के कराए ने अगू की करे वो तेल सानू सुना देंगे जी। बड़ी मेहरबानी इस थोड़ा मेहरबानी तवज्जो लो जी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की गुफ्तगू सुनी, शहरी का भी यही कहना है कि हमारी हुकूमत से अपील है कि खुदारा डीज़ल और पेट्रोल की कीमतों में नुमाया कमी लाई जाए ताकि हम भी अपने सफरी अखराजात बर्दाश्त कर सकें। जी आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे पाकपतन और मुजाफाती इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 10 घंटे तक जा पहुंचा, जिसके बायस आम जिंदगी शदीद मुतासिर हो रही है। तफसीलात जानते हैं बख्तियार सुखेरा से। जी बिल्कुल, पाकपतन और गिरदोनवा में गैर अलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। तकरीबन तीसरा हफ्ता जा चुका है, तो इससे कारोबारी हजरात के साथ साथ जो ताजर हैं वो भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त ताजर मौजूद है, मज़ीद उनसे जानते हैं वो हुकूमत वक्त को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। जी बताएं। जी इस वक्त जो गैर अलानिया लोड शेडिंग है वो 12 से 13 घंटे हैं रोज़ाना। रात को तो इतना जलील करते हैं ये, जिसकी इंतहा नहीं है कि सोना दोबर कर दिया इन लोगों ने हमारा। रात सारी जाके गुजरती गए, आधा घंटा आती है, 2 घंटे बंद, 1.5 घंटा बंद, इतनी गैर अलानिया लोड। इसका कुछ शेड्यूल ही नहीं है। ये वापडा वाले हमें ये तो बताएं इसका शेड्यूल क्या लोड शेडिंग है, कितने बजे आएगी, कितने बजे जाएगी, इसका पता तो हो इंसान ताकि उसका कोई बंदोबस्त कर सके। ये एक्शन वापडा बताए, चेयरमैन वापडा बताए, इनसे पूछा जाए वज़ीर आज़म साहब से और अवैस लगारी साहब से। हमारी गुजारिश है कि ये गैर अलानिया लोड शेडिंग का नोटिस लिया जाए और इतनी लोड शेडिंग क्या ये लॉस लेसेस पूरे कर रहे हैं अपने, इस वजह से ये लोड शेडिंग कर रहे हैं, ये हमें बताया जाए और उनका नोटिस लिया जाए। जी शहरियों की बात आपने सुनी। शहरियों का कहना है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस चीज़ का नोटिस लें, जो गैर अलानिया लोड शेडिंग है उसका सिलसिला जो है वो दरानिया तकरीबन 12 घंटे तक पहुंच चुका है, जिससे कारोबारी हजरात मज़ीद मुश्किलात में फंस चुके हैं। उनका कहना है कि पहले ही जो मुल्क है वो परेशानी का शिकार है और रही सही जो कसर है वो पाकिस्तान वापडा ने निकाल दी है। तो ये पाकिस्तान वज़ीर आज़म से इल्तिजा कर रहे हैं कि जो गैर अलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला है, अगर गैर अलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला उनका कहना है कि ऐसे ही रहेगा तो जो कारोबार है वो बिल्कुल ठप हो जाएंगे। जो आम आदमी है उसका 2 वक्त का खाना जो है वो भी खाना मुश्किल हो जाएगा। कैमरा टीम के साथ बख्तियार सुखेरा, टीवी टुडे, पाकपतन।
जौनपुर में ज़ेर तामीर रोड मनसूबे में मुबैना करप्शन के खिलाफ अहले इलाका सरापा एहतजाज है। इलाका ने एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब और हाईवे हुकाम से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। तफसीलात जानते हैं साजिद लाशारी से। जी बिल्कुल, हम मौजूद हैं तहसील जौनपुर के इलाका मौजारा खजमत वाला में। यहाँ के MP हैं मिनिस्टर पंजाब असम्बली सरदार शेर अली खान गुरचानी, MNA सरदार अमार अवैस खान लगारी। उन्होंने यहाँ रोड दिया। यहाँ हमारे साथ अहले इलाका मौजूद है, इनसे पूछते हैं। आप बताइएगा, आपका रोड ये ठीक बन रहा है या कोई कमी पेशी है इसमें? नहीं सर, ये रोड ठीक नहीं बन रहा। जो इसने दिया है ना 24 फुट एस्टीमेट के मुताबिक ये लोग काम नहीं कर रहे। हमने कई बार रिक्वेस्ट किया है अशोक सनवर शहर को और ठेकेदारों को, हमारी बात किसी ने नहीं सुनी। ये जो है ना, ये सैलाबी इलाका है, फ्लड एरिया है। कई बार जो है ना यहाँ फ्लड आया है। हमने उन लोगों को रिक्वेस्ट किया है, कुछ हमारी बात किसी ने नहीं सुनी। अभी आप लोगों ने मेहरबानी की है, यहाँ तुम लोग देख लो ये जो काम हो रहा है। हमारी वज़ीर आला से, इन लोगों से, MNA जो है ना, ये इन लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि जो हमारा प्रोसेस है ना, काम है ना, जो एस्टीमेट के मुताबिक करें। एक फुट की बर्फ भी हाँ जी। हमारे साथ ये एक और अहले इलाका का नौजवान मौजूद है, इनसे जानते हैं ये कोई यहाँ रोड के मसाइल बता रहे हैं। एस्टीमेट के मुताबिक इन बकौल इनके के 6-6 फुट का यहाँ दोनों साइडों पर फ्लड फुटपाथ इन्होंने बनाना था, जो कि नहीं बनाया गया। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं। आप बताइएगा क्या मसला है? जी बिल्कुल, हमारा मसला ये है कि सरदार शेर अली खान के हम मशकूर हैं कि उन्होंने हमारे रोड दिया। ये बार बार नहीं बनता। ये फ्लड एरिया है, आप देख रहे हैं। 6-6 फुट की बारम रखनी थी, एक फुट की भी नहीं रखी। बारिश का आई है एक दिन पहले, वो उसमें भी वो ख़त्म हो गई है बारम। फ्लड एरिया है। हम उनसे अपील करते हैं कि वो हमारे मसाले को सुने और हल करें। जी, इनका कहना है कि यहाँ जो ये रोड बन रहा है, इसकी हाइट, इसकी जो पेटा है, इसका 24 फुट है। 12 फुट का रोड था, 6-6 फुट की साइडों पे फुटपाथ इन्होंने बनानी थी, वरम बनानी थी, मिट्टी डालनी थी, जो कि इन्होंने नहीं डाली है। यहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं एक मौके पर। ये फ्लड एरिया है, मैं आपको ये बताता चलूँ। और यहाँ इन्होंने 1 फुट सिर्फ जो है ना मिट्टी डाली हुई है रोड से हटकर 1 फुट, जो कि इन्होंने 12 फुट डालनी थी। घारू में मरकजी जनरल सेक्रेटरी मजहर रावजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सिंध की सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। प्रेस क्लब घारू में गुफ्तगू करते हुए मजहर ने कहा कि सिंध में करप्ट निज़ाम ने सूबे की रवायात और अक़दार को नुकसान पहुँचाया। उन्होंने कहा ख़वातीन के हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ और कारोबारी जैसे वाक़यात तशवीशनाक हैं, जबकि तालीमी इदारों में भी तालिबात को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने हुकूमत से फौरी नोटिस लेने, करप्ट नासिर के खिलाफ कार्रवाई और तालीमी इदारों में तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का मुतालबा किया। जामशोरों के इलाके मंजूराबाद में पीने के पानी की शदीद किल्लत ने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन बना दी। मंजूराबाद शहर में कई रोज़ से पीने के साफ़ पानी की अदम दस्तयाबी के बायस शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, जबकि इंतज़ामिया की अदम तवज्जी पर अवाम ने एहतजाज शुरू कर दिया है। मुज़ाहिरीन का कहना है फ्राहम किया जाने वाला पानी इंतहाई आलूदा है, जिसके इस्तेमाल से इंसानी सेहत को संगीन खतरात लाहक हैं, हत्ता कि ये पानी जानवर भी नहीं पी सकते। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर जामशोरों और मुंतखब नुमाइंदों से फौरी नोटिस लेने और साफ़ पानी की फ्राहमी यकीनी बनाने का मुतालिबा किया है। मलील स्टील टाउन में मुनक्किदा तकरीब से मरहूम समाजी शख्सियात को उनकी खिदमात पर अवार्ड से नवाजा गया है। तकरीब में शहरियों और मोअज़्ज़िज़ शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तफसीलात जानते हैं इमरान अली शर से। बिल्कुल, जैसे आज मलिक नेशनल प्रेस क्लब की जानिब से आज प्रोग्राम किया गया था। यहाँ पे बड़ी तादाद में सियासी, समाजी और साफियों ने शिरकत की थी। शील्ड भी दी गई थी, इनामात भी दिए गए थे। मेरे ख्याल में हमारी ऐसी कोई सोशल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए और इसमें हमारे बहुत से जो यहाँ के लोग हैं, जो अच्छे जो सोचने वाले, जो अपने इलाके के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने के लिए सोचते हैं, उनका यहाँ बैठना आज मेरी खुशकिस्मती रही है कि मैंने ऐसे 2 प्रोग्राम अटेंड किए। एक बार जी, आज बड़ा बेहतरीन प्रोग्राम था। हमारे जो सहाफ़ी दोस्त हमसे बिछड़ गए हैं, उनकी याद में जो ताज़ियती ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। असल इस प्रोग्राम का मकसद यही होता है कि हम अपने बिछड़े हुओं को याद करें, उनकी तारीख़ी खिदमात को याद करें, उनकी मलिर की खिदमात को याद करें। तो नेशनल प्रेस क्लब वालों का एक अच्छा इकदाम था वहीद मुराद सियाल का। ये हमारे वो सनहरी दोस्त थे, सुल्तान शाह साकी हो गए, महमूद घोटो हो गया, साईं हमज़ो पंवर हो गया, जिनका सहाफ़त के नाम जो मैदान था उसमें एक बहुत बड़ा नाम था। तो आज प्रोग्राम नेशनल प्रेस क्लब वालों ने मुनक्किद किया है।
یہ ایک اچھی روایت ہے، اور وہ صحافی دوست جو اس دنیا کو چھوڑ چکے ہیں ان کو اس قسم کی جو ایک قسم کی خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ پروگرام رکھا گیا ہے. بہترین پروگرام ہے، اور ان کی جو کی ہوئی خدمات ہیں ان پر تمام لوگ جتنے بھی زندگی کے مختلف مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے اپنے جو پیش کر رہے ہیں ان کو. پروگرام بہت اچھا ہوا تھا اور آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اور یہاں پہ حمزہ پنور کا اور ان سب کا پروگرام تھا، وہ بہت اچھا گزرا ہے، اور سب ایم پی ایم این ایس بھی آئے تھے اور سب نے اچھا ٹائم دیا، تو تھینک یو. جی جیسے کہ آپ نے یہاں پہ آئے ہوئے میں سماجی شخصیت اور صحافیوں کی باتیں سنی. ان کا کہنا تھا کہ آج جو پروگرام تھا ملیر نیشنل پریس کلب کی جانب سے کیا گیا تھا، بہت اچھا پروگرام تھا. جی. بہاولپور میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کے زیر اہتمام طالبات کے لیے آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا. فوڈ ماہرین نے جنک فوڈ، کاربونیٹڈ ڈرنکس اور غیر صحت بخش غذاؤں کی نقصانات پر تفصیلی بریفنگ دی ہے، جبکہ خوراک میں ملاوٹ کے خلاف حکومتی اقدامات سے بھی آگاہ کیا گیا. ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی سید موسیٰ رضا نے کہا ہے آگاہی مہم کو دیگر تعلیمی اداروں تک بھی پھیلایا جائے گا. اسکول انتظامیہ اور طالبات نے اس اقدام کو خوب سراہا. گجرات کی یونین کونسل ٹھوٹھاٹھا رائے بہادر میں پاکستانی مرکزی مسلم لیگ کے ادارہ خدمت خلق کے زیر انتظام 20ویں آئی کیمپ میں 800 مریضوں کا معائنہ اور 130 کامیاب آپریشنز مکمل کر لیے گئے. جنرل سیکرٹری ضلع گجرات محمد سجاد ڈار نے اپنے وفد کے ہمراہ کیمپ کا دورہ کیا، مریضوں کی عیادت کی اور انتظامات کا جائزہ لیا. وفد میں محمد اقبال اور محمد ایوبی شامل تھے، جنہوں نے ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف اور رضاکاروں کی خدمات کو سراہا. منتظمین کے مطابق مستحق مریضوں کو مفت طبی سہولیات کی فراہمی کا یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رکھا جائے گا. ٹھنڈوالا یار میں جماعت اصلاح المسلمین کے تحت ایک روزہ مفت میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا. ناگوری پلاٹ ٹنڈوالا یار میں لگائے گئے اس میڈیکل کیمپ میں مقامی افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے اور مفت طبی سہولیات سے استفادہ حاصل کیا ہے. کیمپ میں ڈاکٹرز نے مریضوں کا معائنہ کر کے ساتھ ساتھ انہیں صحت مند طرز زندگی اور موسمی بیماریوں سے بچاؤ کے حوالے سے آگاہی بھی دی ہے. کامران طاہری نے کہا ہے کہ یہ کیمپس حق محبوب سبحان سائیں کی ہدایت پر پورے پاکستان میں لگائے جا رہے ہیں، جن کا مقصد انسانیت کی خدمت ہے. ٹنڈوادب میں فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں 2000 سے زائد مریضوں کا مفت معائنہ کیا گیا. کیمپ میں ماہر ڈاکٹرز نے مختلف امراض کا مفت معائنہ کیا، جن میں دمہ، ٹی بی، ذیابیطس اور ہیپاٹائٹس شامل ہیں. 2000 سے زائد مریضوں کو طبی سہولیات اور مفت ادویات فراہم کی گئی. منتظمین کے مطابق اس فلاحی سلسلے کا مقصد غریب اور مستحق افراد کی مدد کرنا ہے. ڈیرہ مراد جمالی میں میڈیکل ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ایک روزہ آگاہی سیمینار منعقد کیا گیا. ڈسٹرکٹ کونسل ہال میں خود تشخیصی ادویات کا استعمال اور اس کے نقصانات کے موضوع پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر ایاز جمالی بطور مہمان خصوصی شریک تھے. مقررین نے کہا بغیر ڈاکٹرز کے مشورے کے ادویات کا استعمال نہ صرف بیماریوں میں اضافہ کر رہا ہے بلکہ نئی پیچیدہ بیماریوں کا سبب بھی بن رہا ہے. شرکاء نے عوام سے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر ادویات کے استعمال سے گریز کی اپیل کی ہے. بی آر ایس پی کے زیر اہتمام سی بی میں سیمینار اور واک کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں ماہرین صحت اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. تفصیلات جانتے ہیں شیر محمد رند کی اس رپورٹ میں. سی بی میں عالمی یوم ملیریا بھرپور انداز میں منایا گیا. اس موقع پر بی آر ایس پی کے زیر اہتمام ایک آگاہی سیمینار اور واک کا انعقاد کیا گیا. رپورٹس کے مطابق اس سال کا عالمی تھیم ڈرائیون ٹو اینڈ ملیریا ناؤ وی کین ناؤ وی مسٹ رکھا گیا، جس کے تحت تقریب کا مقصد عوام میں ملیریا جیسے مہلک مرض کے حوالے سے شعور اجاگر کرنا اور اس کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششوں کو فروغ دینا تھا. 2000 سے نیچے افریقن ریجن میں یہ کیسز جو ہے نا 1 ملین مطلب 10 لاکھ لوگ پر ہیئر ہر سال جو ہے نا ملیریا کی کیسز کی وجہ سے مر جاتے تھے. میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ملیریا کی ٹریٹمنٹ اگر آپ پروٹوکول کے ساتھ مریض کو صحیح طریقے سے اور صحیح وقت پہ کھلائیں تو وہ مریض سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دوبارہ اس کو ملیریا کا
जल्दी कोई असर। तकरीब के इख्तिताम पर शुरका ने आगाही वाक में शिरकत की, जिसका मकसद अवाम तक मलेरिया से बचाव का पैगाम पहुँचाना और एक सेहतमंद मुआशरे के क़याम के अज़म को मज़ीद मजबूत बनाना था। कैमरा टीम के साथ शेर मोहम्मद रिन, टीवी टुडे, सिब्बी। नौ शहरों फेरोज में ट्रैफिक आगाही के लिए हेलमेट रैली, शहरियों को हिफाजती इक़दाम का पैगाम दिया गया। नौशहर फ़िरोज़ में जमाते अल इस्लाल मुस्लिमीन ज़िला नौशहर फ़िरोज़ ज़ोन 2 की जानिब से हेलमेट रैली निकाली गई है। ये रैली मोरू बाईपास से अल्लाह वाली चौक तक मुनक़्क़िद की गई है, जिसमें बड़ी तादाद में अफराद ने शिरकत की। शुरका ने हेलमेट पहनकर हेलमेट पहने ज़िंदगी बचाएं का पैगाम आम किया। मुकर्रीरीन ने कहा है कि हेलमेट न सिर्फ हादसा से तहफ़्फ़ुज़ देता है बल्कि मौसम के असरात से भी बचाता है। बाद अज़ां तंजीमी इजलास हुआ है, जिसमें कारकर्दगी रिपोर्ट्स पेश की गई हैं और दुआएं खैर की गई। चकवाल में अवामी प्रेस क्लब की हलबरदारी की पुरवकार तकरीब मुनक़्क़िद हुई है, जिसमें सियासी और सहाफ़ती शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब का इनेकाद मकामी होटल में किया गया, जहां मुस्लिम लीग नून के MPA और पार्लिमानी सेक्रेटरी चौधरी हैदर सुल्तान ने नौमुंतखब ओहदेदारान से हल्फ लिया। तकरीब में चकवाल, डडियाल, तलागंग, सुहाबा और दौलताला समेत ज़िला भर से सहाफ़ियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। तकरीब से खिताब करते हुए चौधरी हैदर सुल्तान ने कहा कि मीडिया रियासत का चौथा सतून है जो हुकूमत को दुरुस्त समत में रहनुमाई फराहम करता है। इस मौका पर चेयरमैन अवामी प्रेस क्लब डॉक्टर जाहिद चौधरी समेत दीगर सहाफ़ी रहनुमाओं ने भी खिताब किया और नौमुंतखब बॉडी को मुबारकबाद पेश की। आरिफवाला में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ज़रिए एहतमाम कबड्डी टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला पंजाब के विजन के तहत मुनक़्क़िद होने वाले कबड्डी टूर्नामेंट में आरिफवाला और पाकपतन की टीम्स के दरमियान सनसनी खेज मुकाबला हुआ है। खिलाड़ियों ने शानदार खेल का मुजाहिरा करते हुए एक दूसरे पर खूब दाव पेच आजमाए। ताहम आरिफवाला की टीम ने 38 पॉइंट्स के साथ कामयाबी हासिल की है। शायकीन की बड़ी तादाद मैच देखने पहुंची और अपनी पसंदीदा टीम को खूब दाद दी है। जीतने वाली टीम के हामियों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डालकर खुशी का इजहार किया। इख्तितामी तकरीब पे मेहमान खुसूसी ने खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़।